So we have Sanidhya Meena with us. And just before bringing him here, so just to tell you his background. So he's a engineer from IT Delhi, civil engineering. And पहले अटेम्प्ट में उनका प्री नहीं हुआ था 24 वाले अटेम्प्ट में. And 25 वाले अटेम्प्ट में it was his first mains. And in the first mains itself, he qualified and got the rank 480. And he will be becoming IAS officer this year. And one of the major factor for him to get into the service is the score in the option that was 300, and he got 792 marks in mains in total. Interview also was not that good, somewhere in the range of 160 something. And this is his background. So what I want from you guys जो भी online भी देख रहे हैं, कि आप लोग इस चीज पे फोकस करिएगा कि इन द वेरी फर्स्ट मीन्स हाउ कैन समबडी be so accurate in prediction, and how can somebody be so precise in his preparation that he could be able to get 300 marks. Okay, aisa nahi tha that he was a veteran, he was giving mains every time, but in the very first attempt he understood the knack of the exam, what it demands, and in the very first attempt he was able to get the 300 marks. Plus, what adds to his credibility is that in the very first attempt, although this year's paper one was relatively analytical on a tougher side, yet he was able to score very decent marks in paper one also. Okay, so based on that, आपके जो भी queries होंगे या आप जो भी उनसे learn करना चाहो, आप यही देखने की कोशिश करो कि what exactly did मतलब what he did right कि पहले attempt में he was able to score that much of marks. So based on this, I just call on Sanidhya. So join me on the stage. Good afternoon. Yeah. So, चलो let me introduce myself first. सर ने बताया होगा, my name is सानिध्य मीना. मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बता देता हूँ. मैंने आईटी दिल्ली से 2024 में सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट हुआ हूँ मैं. उसके बाद मैंने एक्चुअली फाइनल ईयर में ही सर का कोर्स ले लिया था. So I started foundation batch in 2024, and that year I couldn't clear the prelims. So I got somewhere around 6 to 7 months to prepare for the anthropology, because in the foundation batch I just had the classes only and the class notes only. So then I consolidated the notes along with combining with the Lagima ma'am's notes in the June to December, these 6-7 months. And then I made my own master notes out of those. And after the prelims of 2025, I joined the Karandeep Sir's test series for the mains 2025. So this was my attachment with the Level Up IAS. And to be honest, I found both the foundation batch as well as the test series relevant, as well as too helpful, that helped me clear the CSE. Not only like it was my first means only, so as you can think, it was quite overwhelming to give your first means, first optional paper, and to score 300 by God's grace and Sir's teaching. I have scored the 300, so it was quite overwhelming for me. But you must have seen the paper one of anthropology this year, so it was on a little tougher side, because the questions were quite conceptual. And at this point only, I was thanking Karandeep sir in the exam hall also, because he provided the clarity that was needed in the anthropology, because there were many questions which were not direct from the syllabus, but they required conceptual understanding, which was provided by Karandeep sirs. So let's structure this. मतलब ऐसे करते हैं कि स्टार्टिंग में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए एज पर माई अंडरस्टैंडिंग और बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी में मेरे को जो फील हुआ है, और क्या चीज़ें जो हमें करनी चाहिए. और फिर एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स रख लेंगे, अगर आप कोई भी डाउट्स हो जो रिजॉल्व ना हुए, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के अगर कोई भी डाउट्स हो वो रिजॉल्व ना हुए, तो लास्ट में हम क्वेश्चन रख देंगे. सो देखो, फर्स्ट थिंग कि एफर्ट रिवॉर्ड हाइपोथेसिस मेरे हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी में वर्क करती है, क्योंकि मैं मेरा 50 to 60% ऑफ द टाइम आई वाज गिविंग टू एंथ्रोपोलॉजी, एंड नंबर भी ठीक आए हैं, मतलब. तो एज कम्पेयर टू जीएस, तो मतलब एफर्ट अगर डालोगे एंथ्रोपोलॉजी में तो रिवॉर्डिंग है. और बट हमें एक थोड़ा ना फाइन लाइन मतलब देखनी होगी कि इस इतने एफर्ट डालने की हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं बनना, बट थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड रहना है, क्योंकि एंथ्रो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, और कोई भी सब्जेक्ट हो टू बी से, मतलब कोई लिमिट नहीं होती किसी सब्जेक्ट की, कितने भी डेप्थ में जा सकते हैं. तो वो जो फाइन लाइन जो आएगी ना, वो हमें पीवाईक्यू से मिलेगी और सिलेबस से मिलेगी, कि व्हाट वी हैव टू रीड, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी थीम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें पीवाईक्यू एनालिसिस से मिलेंगी. तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि क्या क्या नहीं करना चाहिए एज पर माई अंडरस्टैंडिंग. देखो, सबसे पहले फर्स्ट थिंग द फर्स्ट, डोंट हैव टू मैनी रिसोर्सेज फॉर द सेम टॉपिक. एक टॉपिक के खुद के अच्छे से नोट्स बनाओ. फाउंडेशन किया है तो फाउंडेशन के नोट्स सर ने काफी अच्छे दिए होंगे. अगर खुद ने नहीं किया है, मतलब कहीं बाहर से किया है, तो यू कैन मेक योर ओन नोट्स. मतलब कंटेंट कहीं भी अवेलेबल है, सब जगह कंटेंट अवेलेबल है, तो खुद के नोट्स बना सकते हैं, बट उसको एक रखो, मतलब क्योंकि
एट द एंड क्या होता है कि सर ने तो फील भी किया है, मतलब कि एक वो होता है, हमारे पास एक वीक होता है और उसमें हमें रिवाइज करना होता है। सो वो, और उसमें भी फ्राइडे मतलब सैटरडे को तो हमारा लैंग्वेज के पेपर होते हैं, तो ऑलमोस्ट हमें 5.5 days ही मिलते हैं। उसमें पूरे एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 पेपर 2 रिवाइज करना है। वो तभी पॉसिबल है कि हमारे पास कंसाइज नोट्स हैं, और कंसाइज नोट्स के भी अगर शॉर्ट नोट्स हैं तो मतलब वो चेरी ऑन द केक है, क्योंकि वो हम उनको पूरा रिवाइज कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो शॉर्ट कंसाइज, और एक टॉपिक के लिए ऐसे नोट्स बनाओ कि और कहीं जगह रेफर ना करना पड़े। और वो कैसे पता चलेगा कि हमारे अच्छे नोट्स बन गए हैं, वो मतलब सफिशिएंट है नहीं है? तो सफिशिएंट तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसी चीज होती है कि सफिशिएंट हो जाएगा ये। बट हम ऐसा कर सकते हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस से ये देख सकते हैं कि ये टॉपिक है सिलेबस का, इससे ये पीवाईक्यूज पूछ रखे हैं, तो ये डायमेंशंस कवर्ड होनी चाहिए हमारी उस नोट्स में, और उस बेसिस पे हमें एक अच्छा हैंडसम नोट्स बन जाएगा, उसको हम रेफर कर सकते हैं। तो ये मतलब सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, सेम टॉपिक के लिए एक रिसोर्स और उसको रिवाइज करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो ही हमें रिकॉल करके उसमें लिखना है पेपर में। सेकंड, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है हमें स्कॉलर्स का, और क्या कि हजारों स्कॉलर्स रटने हैं, ये सब करना है। टू बी ऑनेस्ट, आप अच्छा नोट्स बनाओगे तो आपके जैसे थ्योरीज में तो स्कॉलर सॉर्टेड हैं बिल्कुल, कि कितने कितने स्कॉलर हैं, और दूसरे भी चैप्टर्स हैं उनके अच्छे से नोट्स बनाओगे, तो मुश्किल से हर टॉपिक के एक एक स्कॉलर होगा मैक्सिमम। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको रटना पड़ेगा, कि सब रटने की जरूरत नहीं है, बट यू विल फाइंड कि जो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स हैं एंथ्रोपोलॉजी के वो रिपीट होते हैं। जैसे लेवी स्ट्रॉस हैं, वो स्ट्रक्चरिज्म रिपीट हो रहे हैं, और उनका कहीं और भी जगह सोशल स्ट्रक्चर्स में भी काम आ जाएगा। पेपर 2 में जैसे एम एन श्रीनिवास है, काफी मतलब बहुत जगह उनका यूज हो जाएगा। और मतलब गुआ है, मतलब हमारे इतने सारे स्कॉलर्स हैं जो कि काम आ जाएंगे। तो आप अगर एक पेपर बनाएंगे, कंसाइज कंटेंट बनाएंगे, तो आपके जो स्कॉलर्स होंगे वो आपको याद भी रहेंगे और आप पेपर में रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे। बस ऐसे मत करने भाग जाना मेरे मेरे अंडरस्टैंडिंग के कि हजारों स्कॉलर ले लिए, उनके पर्सनल नोट्स बना लिए, ये सोचने के लिए कि जैसे इस बार एक एसआर के चोपड़ा नाम से स्कॉलर आए थे। टू बी ऑनेस्ट, मैंने पहली बार उनका नाम सुना था पेपर में देख के, तो मैंने तो सोच लिया था ये क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से स्कॉलर्स पढ़ रखे थे, मतलब कि जो फेमस स्कॉलर्स हैं। अब मतलब इनफेमस तो नहीं कहूंगा, मतलब जो लेस फेमस स्कॉलर्स हैं उनका मेरे को नहीं पता था, चाहे चाहे वो होंगे एस आर के चोपड़ा, बहुत फेमस होंगे, बट मैंने नहीं सुना था उनका कभी नाम, तो फिर मैं उसका कुछ कर नहीं सकता था। तो वही है कि हमें जो फेमस स्कॉलर्स हैं उनको नहीं छोड़ना है, और जो थोड़े से और मतलब लेस फेमस हैं फेम, उनको भी अगर हम पेरिफेरल कवर कर लें हमारे सिलेबस के थ्रू तो वेल एंड गुड, नहीं बाकी छोड़ दो, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्योंकि जैसा कि सर ने भी बोला था जिनके 316 नंबर आए हैं, कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि अगर तुमने सिर्फ स्कॉलर स्कॉलर पोर कर दिए और कंटेंट तुम्हारा कोई काम का नहीं है, तो मतलब मेरे हिसाब से यू विल नॉट फेच मेनी मार्क्स अगर तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। मतलब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने स्कॉलर्स नहीं डाले हैं, फिर भी 135 प्लस स्कोर किया है सिंगल पेपर में। तो 135 प्लस स्कोर तो एक अच्छा स्कोर है, मतलब, और विदाउट स्कॉलर। ऑल्दो स्कॉलर क्या होता है, थोड़ी ऑथेंटिसिटी दे देता है हमारे आर्ग्यूमेंट्स को। एट द एंड ऑफ द डे हम एक आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हैं, उसमें हमने एक स्कॉलर लिख दिया, तो वो थोड़ी ऑथेंटिसिटी दे देता है, एक जीएस के आंसर को ऑप्शनल के आंसर में अकेडमिक टोन दे देता है थोड़ी। बट हम हर लाइन में तो वो लिख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली मेरी मतलब वो होगा कि ईज आउट करो, स्कॉलर्स पे फोकस उन पे करो जो फेमस है। अब ये पूछ ले कि एम एन श्रीनिवास कौन है और वो नहीं आता, तो वो थोड़ा दिक्कत है। बट अब ये पूछ लिया कि एस आर के चोपड़ा की वहां की स्टडी बता दो, तो मेरे हिसाब से पर्सनली इतनी लोड लेने की जरूरत नहीं है, चिल मारो उसमें, तो उसको हम छोड़ा जा सकता है ऐसे टाइप के स्कॉलर्स को। दूसरा, नहीं तीसरा, आप जैसे दो तो बता दिए, तीसरा अब जैसे कि कंटेंट है, कंटेंट के पीछे जैसे सेम टॉपिक का मैंने बताया कि भागना नहीं है, तो कंटेंट के पीछे क्या होता है कि एंडलेस है, हम इग्नू का भी मटेरियल पढ़ सकते हैं, और बहुत कोचिंग है उनके नोट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर जगह सेम टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो नई होगी। तो वी डोंट वांट कि हम सिर्फ नई चीज के पीछे भागते रहें और मतलब कंसोलिडेट ना कर पाए। एक टॉपिक का लिमिटेड अमाउंट, वी शुड हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑन दिस टॉपिक दैट वी कैन रिवाइज एंड reproduce. So what we can do is कि we should study a syllabus topic, then we can refer to the PYQs of that topic, and then we can make our own notes. And if you're foundation student work, then you can make your own notes out of that for the topic. uh, and you must do answer writing. Answer writing is the game changer for me personally. Actually, I did daily answer writing between the prelims and means. What I used to do was I used to write 50 marks question, and I used to time them also, and these were PYQs only, nothing, no more test series, just PYQs only. And daily I was writing the PYQs 50 marks, and I tried to complete within 40 minutes, although the timing is 35 minutes, but in the initial days I used to take about 42 minutes, 43 minutes, and with gradually the time came down to 36 minutes and finally to 35 minutes. So I was able to complete the paper also. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आंसर राइटिंग डेली इसलिए करनी है क्योंकि एक तो हैबिट हो जाएगी पीवाईक्यूज की, कि पीवाईक्यूज सारे सॉर्टेड हो जाएंगे,
बट एक डाउट रहता है कि हम आंसर लिख रहे हैं वो कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि डेली आंसर के ऐसे कौन इवेल्युएट करके देगा, और ऑथेंटिसिटी मतलब कि सही इवेल्युएट करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इवेल्युएटर्स हैं कि हमें सही इवेल्युएशन मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो फॉर दैट व्हाट आई डिड वाज कि मैंने करणदीप सर की एक टेस्ट सीरीज ले रखी थी। तो मतलब मैं ये फॉर द इंडोर्समेंट नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं बोला उन्होंने, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक टेस्ट को मैं जैसे वीकली या बाई वीकली दे लेता था। जैसे एक रिवीजन हो गया था, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज देना चालू किया। तो अब सेम टॉपिक को मैंने वापस पढ़ा, उसके टेस्ट दिए, और मैं डेली आंसर राइटिंग कर रहा था। फिर से मतलब सोशो कल्चर का मैंने यूनिट 2, 3, 4 इनकी डेली आंसर राइटिंग कर ली है। उसके बाद मैंने टेस्ट दिया है यूनिट 2, 3, 4 का सेक्शनल टेस्ट। तो मैंने उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आंसर लिखे होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि डेली आंसर राइटिंग में कुछ और लिख रहा हूँ और सेक्शनल में कुछ और लिख रहा हूँ। तो उन मार्क्स का मैंने देखा कि जो रिव्यूज आ रहे हैं सर के, जो फीडबैक आ रहे हैं, जो भी चेक कर रहे हैं उनके फीडबैक आ रहे हैं, उनको इनकॉर्पोरेट किया मेरी वापस डेली आंसर राइटिंग में। तो दैट हेल्प की मतलब कि डेली वैल्यूएशन क्वालिटी वाला मिलना मेरे को नहीं लगता कि कितना पॉसिबल है, नहीं है मार्केट में। आई डोंट नो, अगर कोई हो गए ऐसे तो मेरी नजर में तो नहीं है। बट अगर ऐसा हो सकता है कि वीकली हमें इवैल्यूएशन फीडबैक मिल जाए कि व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, कि पॉइंट्स थोड़े कंसाइज लिखने हैं, स्कॉलर्स कहीं डालने हैं, फिर मैं ओवर पोर कर रहा हूँ स्कॉलर्स को, कंटेंट में मेरी क्लैरिटी नहीं है, तो वो मुझे एक वीक में पता चल जाएगा। तो मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ मेरे पाथ को, नेक्स्ट वीक में आंसर राइटिंग करूंगा। तो मतलब मेरे को पर्सनली ये फील हुआ कि आंसर राइटिंग के हम नहीं करते हैं, हम कंटेंट के ज्यादा फोकस करते हैं कि कंटेंट को बार बार रिवाइज कर लेते हैं और आंसर राइटिंग को डिले करते रहते हैं। तो आंसर राइटिंग इज अ मस्ट। फिर एक फोर्थ है नेग्लेक्टिंग दी पीवाईक्यूज और जस्ट हैविंग दी ग्लांस, कि पीवाईक्यूज एक बार देख लिया कि टॉपिक है जैसे थ्योरीज, क्लास इवोल्यूशनिज्म है, तो सिर्फ इसमें बस एक बार देख लिया कि अच्छा क्वेश्चन आया है, जीजी फ्रेजर का क्वेश्चन आया है, ईबी टायलर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, एल एच मॉर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, बस ऐसे ग्लांस कर लिया। सो दैट इज नॉट वर्थ इट मेरे हिसाब से। अगर हम डीपली थोड़ा एनालाइज करेंगे तो हमें थीम्स पकड़ में आएंगी कि ये थीम्स रिपीट होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक है जिसमें बहुत एक्सटेंसिवली पहले से कवर किया जा रहा है, मतलब कि हर साल एक क्वेश्चन आ रहा था, तो थोड़ा मतलब ऐसा होगा कि देखो 2013 से मैंने देखे थे, तो 2013 से तुम एनालाइज करोगे तो पता लगेगा कि ये एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं, और ऐसा हो रहा है कि पिछले 2-3 साल से तो इनके लेवल बढ़ गए हैं। तो फिर तुम मतलब प्रायोरिटाइज कर पाओगे वो टॉपिक्स को जिनका आरओआई ज्यादा है, मतलब कि उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिल्कुल डायरेक्ट हिट आते हैं, मतलब उसके तो छाप के आना है, जो भी तुम्हारे माइंड मैप बना हुआ है बिल्कुल छाप के आना है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कोई भी सिंड्रोम का आ गया तो छाप के आना है वो। तो ऑल्दो अब थोड़े कम कर दिए हैं, पहले पूछते थे ऐसे सिंड्रोम के, बट इस बार जैसे शायद एक डेविड बार्कर का डायरेक्टली पूछा था, तो वो तो मैंने तो पहली बार नाम सुना था टू बी ऑनेस्ट, पर कुछ भी लिख के आया था मैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन था। हाँ फिजिकल इनडायरेक्ट, हाँ। तो मतलब वही है कि इन क्वेश्चंस का हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने जितना पढ़ा है कि नॉर्मल जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं वो पढ़ लिया, पीवाईक्यूज देख लिए, अब उसके बाद तो बहुत सारा कंटेंट है, अब कहाँ लिमिट करेंगे उसकी, कहीं तो हमें लिमिट सेट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो फिर इस मतलब ये स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लगी कि सिलेबस प्लस पीवाईक्यू से हमारी प्रिपरेशन को अलाइन रखना है। फिफ्थ है कि कंटेंट भी ऐसा नहीं बनाना है कि मैं बोल रहा हूँ कि सेम टॉपिक के लिए कि उसके ऊपर 25 पेज का एक कंटेंट बना दिया, कि अब ये मैंने बिल्कुल बहुत अच्छा कंटेंट बना दिया है कि बस पीएचडी लेवल का कंटेंट है, अब इसके बाहर तो क्वेश्चन आ नहीं सकता। हो सकता है उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आए, पर क्या तुम खुद सोचो कि ऐसे 100 टॉपिक हैं तो वर्थ इट है क्या? तुम 2500 पेजेस पढ़ पाओगे क्या आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में? और पढ़ भी लोगे तो क्या रिवाइज कर पाओगे? रिवाइज कर पाओगे तो रिप्रोड्यूस कर पाओगे क्या? तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स हो, पर जिनकी हाई आरओआई है उन टॉपिक्स के तो स्पेशली शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। वो रियली क्या हेल्प करते हैं कि हमारी ना फोटोजेनिक मेमोरी होती है, तो खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे ना, तो वो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने खुद ने इस बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बनाए थे, और वो भी शायद मैंने ऑलमोस्ट जुलाई में चालू किए थे। कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मेरे को लग रहा था जिनकी, जैसे सोशो कल्चर है, सोशो कल्चर में बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, तो मैंने उनके बनाने की कोशिश की थी। तो ये क्या होगा, ये आपको मार्क्स फेच करने में इसलिए हेल्प करेंगे क्योंकि आपके पास रेडीमेड आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको हम डायरेक्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और कंसाइजनेस में भी है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे मेन नोट्स को छोटी राइटिंग में लिख दिया हमने शॉर्ट नोट्स में, उनको थोड़ा कंसाइज भी करना पड़ेगा। और शॉर्ट नोट्स पर्सनली सबके लिए अलग अलग होंगे, क्योंकि आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है। जैसे किसी को एनसेफलाइजेशन से क्या समझ आ रहा है, बाइपेडलिज्म से ही लिख के पूरा समझ आ सकता है, और किसी को हो सकता है कि पूरा ना समझ आए, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो यही मेरे मतलब 5 डोंट्स हैं जो कि नहीं करने चाहिए। फर्स्ट मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, टू मैनी रिसोर्सेज फॉर द सेम टॉपिक। सेकंड, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्कॉलर्स का ज्यादा वो नहीं लेना है कि बहुत ज्यादा लोड लेना हो, जो फेमस स्कॉलर्स हैं वो, और जो पेरिफेरल थोड़े स्कॉलर्स मिल जाएं वो उनका लेना है। थर्ड, आंसर राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कंटेंट के चक्कर में, कि कंटेंट बिल्ड कर लेते हैं और आंसर राइटिंग नहीं करनी है। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द एग्जामिनर को नहीं पता तुमने 25 बुक पढ़ी है, 30 बुक पढ़ी है, उनको ये पता है कि
50 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसने जो 3 पेजेस में लिखा है मैं उस पे इवेल्युएट करूंगा, और उसको मतलब तुम्हारी शक्ल भी नहीं पता है, बस उसको वो आंसर कॉपी दिख रही है, तो तुम्हें बेस्ट करना है उसके अंदर। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आंसर राइटिंग मस्ट है, जिससे कि तुम्हारी क्या होता है, एक तो आंसर लिखोगे तो तुम्हारी सबकॉन्शियस मेमोरी में वो कंटेंट जाता भी जाएगा, और मेंस का ऐसा टाइम होता है सोचने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, सिर्फ हाथ चलना चाहिए, और सबकॉन्शियस मेमोरी में होगा तो बहुत जल्दी हाथ चल जाएंगे, तो दैट विल बी हेल्पफुल। फोर्थ है पीवाईक्यूज का, मैंने बता दिया था, पीवाईक्यूज नेग्लेक्ट नहीं करना है, अच्छे से एनालाइज करना है। और फिफ्थ है वास्ट कंटेंट एंड नो कंसाइजनेस, कि कंटेंट बहुत ज्यादा ले लिया और कंसाइज नहीं कर रखा है उसको, ऐसा कंसाइज करना है कि 1 2 पेज 3 पेज मतलब जितना भी हो मिनिमाइज करके, कि वो तुम्हें याद आ जाए एग्जाम हॉल में, ये करना है। और जिनके फाउंडेशन स्टूडेंट के नोट्स हैं मतलब इनके, तो वो डायरेक्ट ऐसा हो सकता है कि 3 4 रीडिंग जितने भी लगे मतलब उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना ले, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं होगा प्रीलिम्स और मेन के बीच में कि एक बार खुद के पूरे नोट्स बनाए और फिर वो बनाए। और जिन्होंने बाहर से भी कर रखा है, जैसे बेसिक नॉलेज तो होगी एज ए सब्जेक्ट, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं कि टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बना ले, अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो इतना टाइम नहीं होता कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अब तो 3 महीने रह गए और 3 भी नहीं रहे, शायद 85 डेज के राउंड रहते हैं, तो पूरा एक बार कंटेंट को बना के करा जा सके। शॉर्ट नोट्स विल डेफिनेटली हेल्प, मतलब उनसे स्कॉलर्स भी याद आएंगे और सब कुछ याद आएगा उससे। लेट मी एड्रेस 1 2 क्वेश्चंस ऑनलाइन के। धनंजय अत्री, तो उन्होंने पूछा है हाउ टू अप्रोच आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के लिए तो मतलब बेसिकली आपने सुना होगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट होता है। आई पर्सनली डिड दैट, और मैं पैराग्राफ नहीं लिखता था, मैं पॉइंट फॉर्मेट में लिखता था। सो फॉर द इंट्रोडक्शन मैं पूरा मतलब पैराग्राफ एक जो भी होता है इंट्रोड्यूस कर देता था। जैसे डिफाइन, ओरिजिन और डेटा का एक वो चलता है फॉर्मेट इंट्रोडक्शन में, कि हम कोई भी टॉपिक है उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसकी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, ओरिजिन और डेटा बता सकते हैं अगर हमारे पास हो। एंथ्रोपोलॉजी में तो डेटा वाला इतना यूज नहीं आएगा जितना डिफाइन और ओरिजिन आ सकता है, मैंने पर्सनली देखा है। बॉडी में पॉइंट्स लिखते थे सब हेडिंग बना के, ये अप्रोच रहेगी। और कंक्लूजन में एक तरीके से वो जो कहते हैं ना कि भाई कहना क्या चाहते हो पूरे आंसर, जैसे 3 इडियट्स में है कि भाई कहना क्या चाहते हो, तो वो बताना है कि हम एट दी लास्ट कहना क्या चाहते हैं। वो अगर कंक्लूजन में बता दिए तो सॉर्टेड है, क्योंकि कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए और इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। जैसे सर बताते हैं कि वो एक तरीके से मूवी के ट्रेलर की तरह होता है, और एग्जामिनर उन पे जज करता है, कंटेंट पे तो जज करेगा ही करेगा, पर वो अगर अच्छे लिखे तो तुम्हें एज मिल जाएगी। अब वो ऐसा होगा कि तुम अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन खुद अगर थोड़ा बहुत ट्राई करोगे ना कुछ टॉपिक्स के बनाने के, तो वो सबकॉन्शियस मेमोरी में चले जाएंगे और अपने आप उतर के आएंगे पेपर में। ऐसे वहां पे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि इतना अच्छा कंक्लूजन लिख देता हूँ, मेरे को पर्सनली तो ये फील हुआ था। एक उन्होंने पुष्पेंद्र ने पूछा है हाउ डिड यू बाइफरकेटेड योर टाइम बिटवीन जीएस एंड ऑप्शनल प्रिपरेशन। तो पुष्पेंद्र व्हाट आई डिड वाज कि मैं मॉर्निंग स्लॉट जो था, आई वाज प्रिपेयरिंग फुल टाइम, तो मैंने मॉर्निंग स्लॉट तो फुल ऑप्शनल के लिए रख रखा था, आफ्टरनून स्लॉट वाज फॉर द जीएस, और रात को मैं थोड़ा ऑप्शनल और देख लेता था। तो मैंने मतलब ऑप्शनल का ऑलमोस्ट 50-50 हो सकता है, या 55 मैंने ऑप्शनल को दिया और 45 जीएस को हो सकता है, ये हो सकता है एनी डे, बट मोस्टली मैं ट्राई करता था 50-50 रखूं। और मतलब मेरे को तो रिवॉर्ड मिल गया है, तो ठीक है, मतलब वो वर्क करता है अगर आप ऑप्शनल को अच्छे से टाइम दो तो। निखिल, मतलब एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव द पेपर विद मी विच क्वेश्चंस, बट मेरे को रफली जो आइडिया है वो कंपलसरी वाले सारे क्वेश्चन किए थे। निखिल का क्वेश्चन है, सर कैन यू प्लीज टेल मी विच क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्टेड इन बोथ द पेपर्स। तो पेपर 1 का मुझे जितना याद आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 4 किया था, एंड क्वेश्चन नंबर 6 किया था, जितनी मेरे को मेमोरी में आ रहा है, आप वो देख लेना। There is a question that I have made 1 2 page typed notes for each theories based on Karandeep sir's foundation sir class notes. Will it work? अगर आपने अच्छे से कंसाइज कर रखा है तो करणदीप सर का कंटेंट टू बी ऑनेस्ट काफी ठीक है। मार्केट में मैंने जितना मैंने देखा है करणदीप सर का कंटेंट काफी अच्छा है और क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था ऑस्टियोडेंटोकेराटिक, टू बी ऑनेस्ट मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, सिर्फ करणदीप सर के नोट्स में पढ़ा था वो। मैंने मतलब एआई से भी कुछ नोट्स बनाने की कोशिश करी थी आर्कियोलॉजी के, पर ऑस्टियोडेंटोकेराटिक उन्होंने भी मेंशन नहीं किया था एआई में, तो वो सर के नोट्स में था। अब वो बाई लक भी हो सकता है कि एक वर्ड मिल गया, मैं बोल रहा हूँ, पर वो सर के नोट्स में था, तो एक मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो है सर के नोट्स के थ्रू मिल सकती है। इसीलिए मतलब मेरे काफी सीनियर्स हैं उनसे भी मैंने सुना है कि द करणदीप सर क्रैश कोर्स रियली हेल्प, मतलब इस साल उनका शायद उनका फर्स्ट टाइम था, इस बार क्रैश कोर्स निकाला था, तो उनको काफी हेल्प किया है, ऐसा मैंने काफी सीनियर्स से भी सुना है। तो मतलब यू कैन, अगर आपने फाउंडेशन नहीं लिया है तो यू कैन गो फॉर इट, पर देख लेना। There is a question how to add more dimensions to question like GWAS in 2025 means. To be honest मतलब मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी उसकी, बस बेसिक इतना पता था फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, और शायद मैंने वो अटेम्प्ट भी नहीं किया था वो क्वेश्चन। How to incorporate ChatGPT to enhance anthro preparation. Also what to do prelims for anthro or complete focus on prelims for now. तो prelims तो 26 का आ ही रहा है, तो आई थिंक अब तो मार्च एंड होने वाला है, तो अब तो प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट हो जाना चाहिए कम्प्लीटली, क्योंकि प्रीलिम्स भी अब वो तो नया नहीं है बिल्कुल इजी के कि श्योर हो जाओगे कि होना है, बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि प्रिपरेशन मांगता है प्रीलिम्स भी। तो पर्सनली अगर मेरे से पूछो तो अप्रैल में तो फुल फ्लेज
प्रीलिम्स को ही देना चाहिए, एंथ्रो को नहीं देना चाहिए मेरी अंडरस्टैंडिंग में। क्योंकि अगर एंथ्रो को दे रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम प्रीलिम्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और वो काफी अच्छा मतलब फिल्टर स्टेज है, काफी लोगों को फिल्टर कर देता है जो डिजर्विंग भी है। तो मतलब प्रीलिम्स को तो मतलब नहीं इग्नोर करना है। और चैट जीपीटी और इनका रहा तो चैट जीपीटी और ये क्या थोड़ा सा हेलुसिनेट कर जाते हैं कभी कभी, गलत आंसर भी बता देंगे। तो वो थोड़ा सा मतलब इनके साथ रिस्क है, पर एक अच्छा कंटेंट भी दे देंगे। तो व्हाट यू कैन डू इज कि एक दो चैटबॉट्स को यूज कर सकते हो, जैसे जेमिनाई में गूगल इंटीग्रेशन है, तो वो मेरे को थोड़ा ज्यादा सही लगा था अभी मैं जब रिसेंटली पढ़ रहा था। तो मतलब जेमिनाई को यूज कर सकते हो, और किसी और को भी कर लो जो एक बार प्रूफ रीडिंग हो जाए, प्रूफ चेकिंग हो जाए, मतलब तो यू कैन रेफर टू टू। चलो लेट्स कम टू डूज। तो सबसे पहला मैं बोलूंगा रिलीजियसली पीवाईक्यूज को करना है पिछले 10 इयर्स के, और जो मतलब मैं तो पर्सनली बोलूंगा 2013 से जब से चेंज हुआ है, पीवाईक्यू सारे एक बार अच्छे से खुद के हाथ से, मतलब मैं ये बोलूंगा कि सबके मॉडल आंसर बना लो, अगर टाइम हो तो बना लो, नहीं तो हाँ सॉरी, तो उसका ऐसा करो कि खुद के एक बार हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने देखा ना हो कभी पीवाईक्यूज। करणदीप सर की एक बुक आती है पीवाईक्यू बुकलेट की, मैंने सर वो यूज करी थी, और भी बहुत कोचिंग की हैं तो आप वो देख सकते हो। तो हर टॉपिक के पीवाईक्यूज हैं, तो उन पीवाईक्यूज से ये अंदाजा लग जाएगा कि इस टॉपिक में कितनी डेप्थ तक जाना है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत डेप्थ में जाना है। तो हाँ, अगर लॉजिकली देखा जाए तो उन टॉपिक्स में ज्यादा एफर्ट डालना फ्रूटफुल है जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एज कम्पेयर टू वो टॉपिक्स जो कि कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जब हम पीवाईक्यूज देखते हैं ना, तब समझ आता है कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पीवाईक्यूज को तो बहुत रिलीजियसली करना है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो शॉर्ट नोट्स तो खुद के बनाइए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि फोटोजेनिक मेमोरी रहती है, खुद की राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो सेकंड मैं यही बोलूंगा कि मास्टर नोट्स होनी चाहिए खुद की, कि हर टॉपिक का खुद का मास्टर नोट्स हुआ, और अगर अब टाइम नहीं है तो जैसे सर ने पढ़ा रखा है या फिर कहीं और से भी पढ़ रखा है तो शॉर्ट नोट्स खुद के बना लो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 5 दिन में अगर रिवाइज करना है पूरा एक ऑप्शनल पेपर को, तो बिना शॉर्ट नोट्स के तो मतलब ऐसा होगा कि पन्ने पलटने पड़ेंगे। वो कर सकते हो शॉर्ट नोट्स को ऐसा कि थोड़ा अच्छे से रीडिंग लगा सकते हो। तो मतलब वो वर्थ रहता है शॉर्ट नोट्स का। जैसे इस बार मैंने जो वीक था उसमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, वो पूरा कंटेंट पढ़ने का टाइम तो था नहीं। क्योंकि लैंग्वेज का भी मतलब पर्सनली जैसे मैंने हिंदी नहीं लिखी थी तो लैंग्वेज पे भी वर्क करना था, उसी बस मैंने एक वीक में जो किया था उसमें लैंग्वेज पे वर्क किया था और थोड़ा बहुत पहले ही किया था। तो लैंग्वेज को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, तो वो खुद के हैंड रिटन होंगे तो बहुत अच्छा हो रहेगा। थर्ड, डेली आंसर राइटिंग करनी है, और हो सके तो एक बार वीकली एवेल्युएशन करा लीजिए, जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। मैंने पर्सनली यहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी लेवल अप की, तो मेरे को तो काफी फ्रूटफुल लगी क्योंकि पीवाईक्यू से काफी अलाइन थी। तो उससे होगा क्या कि आप डेली आंसर राइटिंग करोगे तो आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में कंटेंट भी जाता जाएगा, और वीकली इवेल्युएशन से आपको एक वो मिलती रहेगा फीडबैक कि व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट। तो उससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और एक ये चीज भी मिलती है कि व्हाट आई एम लैकिंग, तो वो मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये मेरे वो रहेंगे डूज की पीवाईक्यूज अच्छे से देखना है। सेकंड, मास्टर नोट्स होने चाहिए खुद के, या फिर खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और थर्ड, आंसर राइटिंग में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। डेली आंसर राइटिंग अगर हो जाए, मतलब एक दो दिन मिस हो जाए तो चलो ठीक है, बट ट्राई करना ना हो। ये मतलब मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो ट्राई किया था, शायद प्रीलिम्स का जब हो गया था उसके एक वीक बाद से रोज आंसर राइटिंग की थी 50 मार्क्स की। ऑलमोस्ट बस 10 या 15 दिन पहले बंद करी थी, जब मतलब था शायद 10th ऑफ अगस्त के राउंड मैंने बंद कर दी थी। सो ये मेरे हिसाब से काफी फ्रूटफुल रही और काफी वर्क करती है, क्योंकि हमें ना फिर आदत लग जाती है कि हर क्वेश्चन को देखते ही सब हेडिंग्स में डिवाइड करना, कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। तो जब डेली आंसर राइटिंग करेंगे तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है उसके कैसे कैसे एड्रेस करना है, जैसे फीडबैक मिलेंगे तो काफी हेल्पफुल रहता है वो।